Types of forces. Broadly, there are two categories of forces: contact forces and non-contact forces. What is the meaning of contact forces? Contact forces are those forces wherein there must be a physical contact between the two objects. Then only this force will come into existence. Okay, ये फोर्स तभी एग्जिस्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई कनेक्शन होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है. लाइक मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. यस, मस्कुलर फोर्स की अगर हम बात करें, सी व्हेन यू हैव टू लिफ्ट एनी हैवी बैग फॉर एग्जांपल, okay, so that bag must be lifted by you, that weight must be held by you. So there is a physical contact between your muscles and that object. Okay, when we talk about the mechanical force, when we are pulling something, pushing, we are lifting that object. There is a contact between that object and our body. Then only this force will come into existence. When we look at the frictional force, it is a force which opposes the motion. Whenever an object moves, okay, now this force will try to stop that object or try to oppose the motion. Now this force can also come into existence only when there is a contact between the two objects. For example, a ball, you kick a ball, that ball starts moving. Okay, now when you applied force, that ball starts moving, but after some time that ball stops the movement, it comes to rest. That is because there is a friction between the surface of the ball and the ground. So the surface of the ball and the ground, they must come in contact for this force of friction to come into existence. You can see here again frictional force. One example is given here. This fellow is trying to pull this heavy weight towards himself, है ना? Now, but it is very difficult to pull this because there is a frictional force acting between this ground and the surface of this box. Okay, because this force always opposes the motion. Now, in all these examples, what we have seen, the two objects are in contact, in physical contact. Okay, now when there is a interaction of this kind, there is a physical contact between two objects, then only this force is going to come into existence. Such forces are known as contact forces. Examples: muscular force, frictional force. Okay, they all come under this category. About frictional force, we will study in the we have a separate chapter in physics, friction. In detail, we will be discussing this particular type of force. Coming to non-contact forces, now in these type of forces, okay, the physical contact between the objects, okay, which are interacting is not required. Now gravitational force is the force with which, okay, all the objects are attracted towards the center of the earth. That is gravity, or the gravitational force, we can say. Whatever you throw up, that falls down. Okay, if you throw a ball, it also falls down. Even though there is no contact between the ball and the earth, the ball is moving towards the earth with some force because it is experiencing a force. When you look at electrostatic force of attraction, okay, this comb is attracting many bits of paper towards itself. Okay, वो दूर से ही जो है उनको खींच रहा है, उनको अट्रैक्ट करता है. You look at these this magnet here, horseshoe shaped magnet is there. Now this magnet is going to attract this iron nail from a distance. यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है इस लोहे की ऑब्जेक्ट में, चाहे नेल हो या कोई और आयरन पीसेस हो, और इस मैग्नेट में कोई कांटेक्ट नहीं है. Okay, still from a distance it is exerting its effect. So such forces are non-contact forces. In these type of forces, the contact between the two interacting objects is not required. Okay, so these forces are producing an effect on another object from a distance. So such are non-contact forces. Examples we have seen: ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना. मैग्नेट्स जो है वो दूर दूर से अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती हैं. इवन ग्रेविटेशनल फोर्स यू हैव सीन. ओके, एंड इलेक्ट्रिक force also. When you rub any scale on your head
Okay, that charge scale now can attract bits of paper from a distance itself. So यहाँ पे physical contact होना important नहीं है. Okay, so such forces are non-contact forces. Now pressure, when we talk about pressure, basically what is pressure? Pressure भी एक force ही है, एक दबाव है, ठीक है, but यहाँ पे area matter करता है. Okay, मतलब कितने area पे आपने force apply किया है, that will give you the pressure. Force per unit area is defined as pressure. यहाँ पे force की strength के साथ साथ area भी बहुत important है. Okay, now how much force you are applying in Newton? area की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर की हो गई आपकी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ओके, और प्रेशर को हम लोग पास्कल से मेजर कर सकते हैं. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन स्क्वायर मीटर. ओके, सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी. यू कैन सी हियर फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और एरिया की आपकी स्क्वायर मीटर है. ओके, सो this is the unit for Pascal. Fine, next. अब प्रेशर की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे ये एप्लीकेशंस हम लोग जो है डेली लाइफ में कहाँ इनको यूज़ करते हैं प्रेशर को, इस इक्वेशन को, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी फुटबॉलर्स होते हैं उनके जो शूज़ होते हैं उनमें नीचे ऐसे स्पाइक्स होते हैं. ओके, अब ये स्पाइक्स जो हैं बेसिकली इनका क्या पर्पज़ होता है, क्या रोल होता है इनका? Now these spikes what they do actually, जो area of contact है okay with the shoes and the ground वो कम हो जाता है. area of contact कम होने की वजह से जो pressure है वो बढ़ेगा, है ना. हमने देखा है pressure is given by force upon unit area. तो अगर area of contact कम होगा okay fine, तो जो pressure हमारा वो बढ़ेगा. That means pressure directly depend करता है force पे. अगर आप force बढ़ाते हो, force ज़्यादा अप्लाई करोगे तो pressure ज़्यादा होगा. फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम. लेकिन एरिया का ऐसा नहीं है, क्योंकि एरिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में है. ओके, वो डायरेक्टली इक्वल नहीं है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. ओके, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा, कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में. सो यहाँ देखिए जो स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स की वजह से क्या हो गया, जो सरफेस एरिया है शूज़ का, ठीक है, वो कम हो गया, तो कांटेक्ट एरिया कम हुआ. कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से जो प्रेशर है ट्रैक के ऊपर ग्राउंड पे वो बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ने से क्या होगा एक्चुअली, जो रनर है ओके, ही और शी विल गेट द बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक बॉय है, वो क्या कर रहा है एक्चुअली, ज़मीन में स्पेड की मदद से, यहाँ पे एक स्पेड है ओके, और उसे गड्ढा खोद रहा है, एक होल करने की कोशिश कर रहा है वो. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये स्पीड, ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा है, इसकी जो एज है बहुत ही शार्प है वो. ओके, एज शार्प होने का मतलब कि इतनी पतली है वो, इतनी शार्प है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्पेड वो बहुत कम है. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली द प्रेशर विल बी हाई. सो हाई प्रेशर इज रिजल्टिंग दिस डिगिंग यू नो वेरी ईजी, है ना. So high pressure means this digging becomes very easy. Now here you can see one more thing. स्कूल बैग्स के हमारे जो स्ट्रैप्स होते हैं जो शोल्डर्स पे आते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं, थोड़े से इस टाइप के थिक होते हैं, ये वाइड शोल्डर पैड. ओके, इसका रीज़न ये होता है, ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है यहाँ पे. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने की वजह से जो वेट है, वेट की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे आएगा वो प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा. ओके, द वाइड शोल्डर पैड्स अटैच्ड टू अ हैवी स्कूल बैग carried by the boy in this figure reduces the pressure on the shoulder because the surface area of contact between the pads and his shoulder is big. अब area of contact बढ़ गया बैग और इसके shoulders के बीच में, तो जो pressure है ड्यू टू बैग वो अपने आप ही कंधों पे reduce हो जाएगा. ओके, आपने देखा होगा जितने बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हैं या ट्रैक्टर्स हैं या आर्मी के बहुत बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, उनके टायर्स बहुत ही चौड़े होते हैं, वेरी वाइड टायर्स. ओके, जो ये हैवी व्हीकल्स होते हैं दे यूजुअली कैरी अ लॉट ऑफ वेट, तो उस वेट की वजह से जो है वो दे कैन सिंक इनटू द रोड और द ग्राउंड. ओके, तो ऐसा ना हो इस वजह से उनके जो टायर्स वो बहुत ही वाइड होते हैं. वाइड टायर्स क्या करते हैं, जो प्रेशर है व्हीकल का उसको वो रिड्यूस कर देता है, और प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली
जो मूवमेंट है रोड पे ग्राउंड पे वो स्मूथ होगी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, लाइक पोलार बेयर्स है, यहाँ पे एलिफेंट है, ठीक है। इनकी जो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो इनके जो फीट हैं ये, ओके, ये काफ़ी ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, है ना, नीचे के पैर काफ़ी ब्रॉड हैं, वाइड हैं। इसका रीज़न ये होता है, जो सोल्स इनके इतने ब्रॉड इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो जो प्रेशर है ऑन द ग्राउंड विल बी लेस। प्रेशर अगर ग्राउंड पे लेस रहेगा तो इनकी वॉकिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी, सिंक नहीं होंगे पैर इनके जो है वो ज़मीन में, ग्राउंड में गड़ेंगे नहीं। ओके, सो दिस शुड बी टेकन। सो बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग फाइंड करते हैं ना डे टू डे लाइफ। ओके, दैट देख सकते हैं आप, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट स्मॉल है तो प्रेशर हमारा हाई होगा, ठीक है। तो जितने भी कटिंग टूल्स हैं जैसे सीजर्स हैं, नाइव्स हैं, हैंड सॉज हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो काफ़ी कम होता है। इस वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से जो प्रेशर है बढ़ता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू कट द थिंग्स। नाउ देर आर सम एरियाज वेर इन वी नीड वेरी low pressure. Okay, as we have seen in your previous examples, here your school bag straps are very broad to reduce the pressure. Okay, the animals, their feet soles have very they are very broad to reduce the pressure so that walking becomes easy. Likewise, there are various day-to-day life applications of this small pressure. So to reduce the pressure or to make the piece small, what we do basically, we increase the area. When we increase the area of contact, automatically the pressure reduces. You might have seen very high buildings, the skyscrapers, usually the base is very broad. When the base is broad, that means the area of contact with the ground is broad, and that building, okay, whatever may be the story, okay, it becomes very easy. The pressure reduces on the ground, and pressure is less, that means that stability is very high. So this is all about the pressure. Now pressure in liquids, hydrostatics. Okay, pressure exerted by liquids. See, liquids always exert pressure like solids. Liquids से pressure exert करते हैं. इनका जो pressure होता है वो depend करता है height of the water column. Okay, जो height है पानी की वो कितना है, height column, पानी की या किसी भी liquid की density क्या है, acceleration due to gravity. Okay, yes, यहाँ पे जो g की वैल्यू है that is 9.8 मीटर पर सेकेंड, यस, स्क्वायर. ओके, सो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स. ओके, अब क्या होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें हाइट ऑफ वाटर की, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये कंटेनर, इट कंटेन्स वाटर, तो जितना ज़्यादा हाइट होगा, ओके, उतना ज़्यादा ही प्रेशर. सो एज यू मूव डीप डाउन दिस वाटर, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. तो सबसे टॉप में जो प्रेशर है वो कम है, एज यू मूव डाउन इट इज स्टिल हायर, it will keep on increasing. Pressure increases with the we can say here the height. Okay, as you move deeper into the water. So यहाँ पे देखिए हमने एक एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं, कैन लेके, वाटर लेके, उसमें 3 होल आप कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स. सो आप ये देखेंगे द वाटर एक्चुअली विच मूव्स आउट, ओके, वो सबसे ज़्यादा जो है बाहर की तरफ, सबसे लोवेस्ट वाले जो आपने होल बनाया है, पॉइंट है, वहाँ से निकल के वो काफ़ी दूर जाके गिरता है, वहाँ का डिस्टेंस काफ़ी होता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर है कंपेयर टू द अदर 2 टॉप होल्स. ठीक है, इसके अलावा पानी जो है, अगर किसी एक लेवल को हम ले लें, इफ यू टेक एनी पर्टिकुलर वन लेवल, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग, तो उस लेवल पे सभी डायरेक्शंस में जो प्रेशर है वो सेम रहेगा. इट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर लेवल और पॉइंट. नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स का जो है, वाटर लिक्विड प्रेशर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. ओके, सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, सिरिंजेस में जब डॉक्टर दे टेक द ब्लड और दे इंजेक्ट द मेडिसिन्स, दे यूज दिस. ओके, ब्रेक सिस्टम जो होता है कार्स का, दैट ऑल्सो. Now what is air pressure? Air pressure is the pressure exerted by the air that surrounds the earth. This is air pressure. Okay, तो air जो है वो pressure डालती है, वो दबाव डालती है. We all know that. You can by a simple experiment know that. एक बॉटल लेके आप उस पर बिल्कुल गर्म पानी फिल कीजिए. Hot water when you fill, what will happen actually? पूरा नहीं भरना है इसको, आपको just 1/4 और half
सो इस गर्म पानी से जो भाप बनेगा, ओके, दैट स्टीम, इट विल मूव अप, और उस प्रोसेस में जितना भी वट एवर एयर इज फिल्ड इनसाइड दिस, इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस बॉटल इमिडिएटली। यू लिड इट, आप इसको लिड कर दीजिए एंड टाइटली क्लोज इट एंड लीव इट फॉर सम टाइम। क्या होगा, उस टाइम के बाद जब ये वाटर इसमें कूल होगा तो वो जो स्टीम है वो कूल होगी, इट विल कूल बैक टू फॉर्म वाटर, ओके, इट विल कूल टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, कंडेंस होगी वो। तो जो वैक्यूम है वो क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, वहाँ पे स्टीम थी, और वो स्टीम जब पानी बन चुकी है तो वहाँ वैक्यूम है अंदर वैक्यूम होने की वजह से वहाँ पे कोई प्रेशर एयर का प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, वहाँ नीचे सिर्फ पानी है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, बाहर एयर प्रेजेंट है तो एयर अपना दबाव डालेगी, लेकिन अंदर वापस उस प्रेशर को कॉम्बैट करने के लिए कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो जो बॉटल है आपकी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड, उसकी जो शेप है आप देख सकते हैं वो कैसी पिचक गई है। ओके, सो दिस विल हैपन। सी, हमारी जो बॉडी है, इवन वी आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी हैवी एयर प्रेशर, लेकिन हमें फील नहीं होता, बिकॉज इनसाइड अ बॉडी वी हैव ब्लड रनिंग इन अ वेन्स। तो हमारा जो ब्लड है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करता है एयर के ऊपर, दैट इज़ वाई वी आर नॉट क्रश्ड। अगर हमारे ब्लड प्रेशर ना हो तो हम जो है इस हवा के दबाव से बिल्कुल क्रश हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चन आंसर्स and the remaining points if any. Thank you.